Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Constitution, Why and How. As I am telling you continuously, this thing that this is your first chapter, and in the revised syllabus, some other the content of some other chapters have been included in this chapter. So, Constitution as a living document, which is your ninth chapter. The content of that chapter has also been included in this chapter, Constitution, Why and How, which we have discussed in the previous classes. And the content of this last chapter, the philosophy of the Constitution, some of the content of that chapter has also been added in the first chapter. So, now at present we are doing philosophy of the Constitution, and under this philosophy of the Constitution we have done various important philosophies which are the basis of the Indian Constitution. Like the first we have discussed about individual freedom, and then we discussed about social justice, and then respect for diversity and minority rights. This is also important philosophy of our constitution. Then secularism, and now we are discussing this universal adult franchise which is given by our constitution. So as we have started our discussion regarding this universal franchise. So what we find that there was a feeling of nationalism when we were under the British rule. This feeling of nationalism arose, and this nationalism became one of the main cause against main cause for the removal of the British government. And what happens actually whenever there is this idea of a nation takes place. जब भी इस तरह की एक नेशन का आइडिया सामने आता है, तो इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया भी उसको फॉलो करता है, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ नेशन इन द एब्सेंस ऑफ democratic self-government. Democracy is the government of the people, है ना, of the people, as Abraham Lincoln said. बहुत ही सिंपल आप समझ लीजिए, डेमोक्रेसी जो है वो जनता का शासन है. ओके, सो नेशन से जब भी हम मीन करते हैं, नेशन मीन्स द पीपल, है ना. अगर एक मोनार्किकल फॉर्म होता है तो वहाँ पर नेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है. नेशन का मतलब यही होता है कि द पीपल शुड बी गिवन प्रॉपर इम्पोर्टेंस एंड प्रॉपर वैल्यू. उन्हीं से मिलके ये राष्ट्र बनता है. एक राजा राष्ट्र का निर्माण नहीं करता, बल्कि जनता जो होती है वो राष्ट्र का निर्माण करती है. सो जब भी नेशन का एक फीलिंग आता है, नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, तो इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात होती है. और जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, द फाइट विच वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, दैट वाज नॉट ओनली टू end the British rule in India and the colonial rule in India, but this fight was also to establish a democratic government in India. And that is the reason that our constitution makers, without any this debate and discussion, they accepted this universal adult franchise as one of the most important provision of the Indian Constitution. And as I told you in the previous class, because of this provision of universal adult franchise in our Constitution, the Western countries criticize it, because if we see in the Western countries what happened, that some of the groups like women, then the poor, they have to fight a long battle in order to get this right to vote. Like if you remember, you have read about the French Revolution in class 9th, and you have seen
है ना. आई हैव डिस्कस दिस इन द क्लास ऑल्सो. इसके बारे में पहले ही हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, है ना. 1791 में 89 में रेवोल्यूशन होता है, एंड देन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1791, and according to this constitution, male members were regarded as citizens, and those male members who have property, and propertied male members of the society were considered as citizen, and only they were given this right to vote, है ना. Then there was demand for right to vote to all the male members. इस तरह की डिमांड्स, फीमेल्स की भी डिमांड थी, शुरू से ही डिमांड थी. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 1848 में जो स्लेवरी थी वो एंड हो जाती है फ्रांस से, और उसके बाद सारे मेल मेंबर्स को राइट टू वोट मिल जाता है. बट स्टिल बाय दैट टाइम ऑल्सो वी फाइंड दैट द वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट. Then again they have to fight for almost 100 years. Then in the year 1946 the women in France get this right to vote, है ना. तो ये जो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, धीरे धीरे ओपन किया गया. यूनिवर्सल नहीं था वहाँ पर. जो एडल्ट फ्रेंचाइज थी दैट वाज नॉट यूनिवर्सल. बट इन आवर कंट्री what we see that the fight against British rule was actually the fight for the democracy also. So now when the British rule was ended and a new constitution was in the process of making, now there was no need to fight a new battle. There was no need to fight again a battle for this right to vote, because लड़ी जा चुकी थी, है ना. तो अब उस लड़ाई को लड़ने का जो रिजल्ट होता था वो रिजल्ट देने की बारी थी. एंड दैट इज़ द रीज़न आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी debate and discussion, they adopted this universal adult franchise. And in this regard you will see that this idea of universal franchise, it lays securely within the heart of nationalism. हमारे जो nationalism की जो feeling थी ना, उसके heart में यही था कि सबको political decision making में participation मिलना चाहिए, है ना. और इसके लिए एक बहुत ही पहला जो कहेंगे कि नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट जो हुआ था एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का, दैट वाज इन द ईयर 1895. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल करके आया था इन द ईयर 1895, विच वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो पब्लिश हुई थी 1895 में, इसमें जो ऑथर थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि एवरी सिटीज़न, एनीवन who took birth in India had a right to take part in the affairs of the country. That is universal adult franchise, है ना. So this was there in the fight against the British. And then Motilal Nehru की जो report आई थी 1928 में, in that report also we see that this concept of citizenship was there, and in this it was said that every person of any gender who has attained the age of 21 is entitled to vote for the House of Representative, है ना. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? जैसे कि लोकसभा को ही के लिए ही ये वर्ड्स आ रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो मोतीलाल नेहरू ने भी इस बात की, उनकी जो कमेटी थी 1928 में जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसी की बात की थी. तो हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट और लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिससे कि जो नेशन है उनके विल को प्रॉपरली एक्सप्रेस किया जा सके. द कंट्री, द नेशन, हाउ द नेशन विल एक्सप्रेस देयर डिज़ायर थ्रू दिस राइट टू वोट, है ना. तो ये चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी है दैट इज़ फेडरलिज्म.
So we see that we have adopted federal form of government or federalism, which means that there will be two levels of government, the one at the center level and the other at the state level, and there will be division of power between these two levels of government, and this division of power will be done by the constitution itself. So this is फेडरलिज्म. बहुत ही सिंपल चीज़ है. आपको यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. 10th में भी आपने फेडरलिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. नाउ वी सी दैट वी हैव asymmetrical federalism. We have adopted asymmetrical federalism. So in order to understand asymmetrical federalism, you need to understand symmetrical federalism first. है ना? We can say that there can be two types of federalism, that is symmetrical and asymmetrical. So what is symmetrical? Symmetrical federalism हम उसको कहेंगे जहाँ पर all the units of this federal government has equal status. ठीक है. जितने भी यूनिट्स से मिलकर के बना है फेडरेशन, उन सब यूनिट्स के स्टेटस इक्वल है, तो उसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे. सिमेट्रिकल का मतलब ही क्या होता है? बराबर, है ना. तो सिमेट्रिकल मतलब इक्वल. सो ऑल द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ दिस federalism has same status, then it is called symmetrical. But in our country, what we see that the constituent units are not given same status by the constitution. Okay, like article 370. आर्टिकल 3 जो कि अब एट प्रेजेंट इसको हटा दिया गया, 2019 में इसको हटा दिया गया अक्टूबर में. बट जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो ये आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था. और आर्टिकल 370 क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है ना. इसी तरह से आर्टिकल Article 370, then another article is there, Article 371. ठीक है. ये 371 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल स्टेटस देता है. तो दिस इज व्हाट द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर नॉट हैविंग इक्वल स्टेटस. किसी को स्पेशल स्टेटस दिया जाना, यानी कि द यूनिट्स आर नॉट इक्वल. सो दिस इज एसिमेट्रिकल. ठीक है. इसी को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं, जिसमें कि यूनिट्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट हैविंग इक्वल स्टेटस. ठीक है. और जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 2 levels ऑफ गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन दीज 2 levels ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इन आर federalism, what we find that the constitution has deliberately divided the powers between the center and the state in such a manner that the center become strong. है ना. हमारा जो फेडरलिज्म है वो ऐसा फेडरलिज्म है जिसमें कि सेंटर को मजबूत बनाया गया है. एंड देयर इज रीजन बिहाइंड इट. इसके पीछे रीजंस है क्यों फेडरलिज्म होते हुए भी हमारा फेडरलिज्म का यही मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों के इक्वल स्टेटस होनी चाहिए. दोनों के पावर का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. नो वन इज सबऑर्डिनेट टू एनीवन and both the government which is there at the both levels of the government, they should have equal status. but हमारे यहाँ सेंटर को जानबूझ के मजबूत बनाया गया. there is reason behind it. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. एक तो जो जिस समय हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चल रहा था, एट दैट टाइम द सिचुएशन वाज वेरी टेंस बिकॉज ऑफ
partition of the country. Partition हुआ, because of partition displacement of population was taking place, and this displacement of population at so many instances it became violent. So many people were killed, millions of people इसमें मारे गए. तो जो समय का सर्कमस्टांस था वो काफ़ी, उससे लग रहा था जैसे कि इंडिया विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एज अ नेशन, है ना. तो इस कारण से ये समझ में आया कि जिस तरह से इंडिया के दो पार्ट हो गए, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, वैसे ही अगर हमने स्टेट्स को अगर हमने सेंटर को ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया तो इट मे cause further divisions of the country. So in order to keep the unity and integrity of the country, this was done कि सेंटर को मजबूत बना दिया जाए. ठीक है. और उसी समय जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो ये समझ में आया कि सेंटर को अगर हम स्ट्रॉन्ग बनाकर चलेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे एज अ नेशन. अदरवाइज जो सिचुएशंस उस समय के थे उसमें सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था. ठीक है. तो ये चीज़ें हमने देखा कि एक तो एसिमेट्रिकल है हमारा फेडरलिज्म और सेंटर को जानबूझ करके ज़्यादा पावर दिया गया. अगर यहाँ पर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन करते हैं तो हम देखेंगे कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सेंटर इज़ नॉट पावरफुल बट द स्टेट्स आर पावरफुल, है ना. सेंटर से ज़्यादा पावर जो है वो स्टेट्स को दिया गया है. एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल, जिसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं दे ऑल आर हैविंग इक्वल स्टेटस. लेकिन हमारे यहाँ एसिमेट्रिकल है क्योंकि हमारे यहाँ जो यूनिट्स थे उनके कुछ स्पेसिफिक नीड्स थे, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थे, है ना. और इसलिए हमारे कंट्री में जानबूझ के डेलिबरेटली हमारे नेशनल लीडर्स ने इस तरह के फेडरलिज्म को क्रिएट किया. जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात हम लेते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का जिस तरह से इंडिया में उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो वहाँ के राजा उस समय थे हरि सिंह, उन्होंने जो साइन किया, है ना. और उसके बाद एक इट वाज अ टाइप ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया कि उनका जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चर है, जम्मू कश्मीर का जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको हम मेंटेन रखेंगे, हमारा उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा. इसी तरह के जो प्रॉमिसेस थे उसको पूरा करने के लिए आर्टिकल 370 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ना. तो ये चीज़ें जो हुई ये यहाँ पर हमें ये एसिमेट्रिकल दिखता है क्योंकि जम्मू कश्मीर वॉज द ओनली स्टेट विच वॉज गवर्न बाई इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन टिल अक्टूबर 2019, है ना. इसी तरह से 371A जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो ये कहता है, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक नागालैंड को उसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है ना. तो इस आर्टिकल में क्या किया गया है कि जो पहले से नागालैंड में लॉज बने हुए थे, मतलब नागालैंड जब इंडिया का पार्ट बना उसके पहले से जो लॉज इंडिया में नागालैंड में बने हुए थे उसको इस आर्टिकल 371 ने वैलिड कर दिया. ये नहीं कि इंडिया में जब वो मिल जाते हैं तो फिर पहले वाले लॉज नहीं चलेंगे, नहीं, पहले वाले लॉज भी चल रहे थे. और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लोकल आइडेंटिटी थ्रू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इमिग्रेशन. एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जितने भी, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आखिर इनको स्पेशल स्टेटस देने की ज़रूरत ही क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि उनका कल्चर जो था ना वो बिल्कुल डिफरेंट था. अगर पूरी इंडिया के कल्चर को देखें तो जो जम्मू कश्मीर है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका कल्चर डिस्टिंक्ट था और दे वांटेड टू रिमेन लाइक दैट. दे डिडंट वांट कि उनके लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस हो और इसलिए उनको ये स्पेशल स्टेटस
दिया गया था उस समय। मर्जर के लिए भी एक तरह का, एक हम इसको कह सकते हैं जिसको प्रलोभन, एक लालच देना, बेट की तरह यूज़ किया गया था। तो जो भी था हमारा एसिमेट्रिकल ही आज के डेट में भी द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसिमेट्रिकल, क्योंकि 370 के हटने के बाद भी आर्टिकल 371A तो है ना। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही मानता है कि अगर हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी एक स्टेट को स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट इफ सम काइंड ऑफ differential treatment is given to some of the states, क्योंकि ये डिमांड है, ये ज़रूरत है, इसलिए इसको ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। एंड नाउ वी सी दैट आवर कंट्री इज़ अ मल्टीलिंगुअल फेडरेशन, है ना। इतने सारे लैंग्वेज को बोलने वाले लोग यहाँ पर साथ साथ रहते हैं, एंड जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं वो उनका आज के समय में पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, एंड सभी को एक जैसा, एक समान, इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक और लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म जो इंडिया का है उसमें हमारी दोनों ही डिमांड को कंबाइन कर दिया गया है। एक तरफ यूनिटी और दूसरी तरफ कल्चरल रिकॉग्निशन, है ना। यूनिटी भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो स्टेट्स हैं जिनका कि डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी बनाए रखना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चला जा रहा है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट फेडरलिज्म, एंड नाउ वी कम टू द next political philosophy of our constitution, that is, it is the last political philosophy. It's national identity. Okay. So the constitution constantly reinforces a common national identity, because what we find that like in our country we don't we are not having double citizenship in spite of federal form of government, in spite of federalism. Our country believes only in single citizenship, है ना. So we give importance to this concept of national identity, and this common national identity, if we see, it is not compatible with distinct religious or linguistic identity. What is important that we must have a common national identity. We should not give emphasis to our religious or linguistic identity. And our constitution tried to balance these various identities, because yes, any person has so many different identities at different times, है ना. Some according to context, according to need, according to time, we have different identities. And what is important that we our constitution had tried to balance these various identities. And in balancing these various identities, preference was given to common identity, है ना. And when in our constituent assembly there was debate over one issue कि कैसे जो हमारे कंट्री के जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए. तो इसके लिए दो बातें हो रही थी. एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी की बात हो रही थी और एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी. ठीक है. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है? रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में जैसे कोई भी एक जो कंस्टिट्यूएंसी है, देयर आर टू थिंग्स. लेट मी राइट इट. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी,
and the second is separate electorate. Okay, so in order to give representation to the deprived section of society, there was discussion, there was debate between these two कि किसको अडॉप्ट किया जाए, should we adopt reserve constituency और separate electorate. तो अब पहले तो आप ये समझ लो कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. रिजर्व कंस्टिट्यूंसी जो होता है जैसे कि in order to conduct elections, what is done that delimitation commission divides the whole country into different smaller parts, है ना. These small parts are known as constituency. Like हमारी जो लोकसभा है एट प्रेजेंट, अगर इसको आप सही से समझ लीजिए, ये सभी चीज़ें हालांकि क्लास 8th की हैं, बट आई डेफिनेटली नो यू मस्ट नॉट बी रिमेम्बरिंग वेरी वेल. दैट्स वाई आई एम जस्ट, दीज आर द बेसिक थिंग्स. अगर ये नहीं पता रहेगा कि कंस्टिट्यूंसी एग्जैक्टली किसको कहते हैं, तो फिर आगे की चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ आएंगी. तो ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना. इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अगर है तो आप इसको क्लासेस में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में पूरी तरह से क्लियर करना ज़रूरी है. ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ हमारी लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, है ना. अब ये जो 543 मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड मेंबर्स, है ना. इनके लिए इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस जिसको कहते हैं, जनरल इलेक्शन जिसको कहते हैं. अब इनके 543 मेंबर्स के लिए पूरी कंट्री को क्या किया जाता है, 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. हर पार्ट से क्या होगा, हर पार्ट से ढेर सारे जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर कोई इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, है ना. हर पार्ट से पूरे कंट्री जो है 543 पार्ट्स में बट गई. हर एक पार्ट में क्या होगा कि 4-5, कोई लिमिटेशन नहीं, देयर इज़ नो लिमिटेशन, कितने भी हो सकते हैं. मोदी जब पहली बार लड़े थे इलेक्शन बनारस से, तो उस समय जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स था वाराणसी से, दैट वाज मोर देन 80 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे. तो इस पर कोई लिमिटेशन नहीं. ठीक है, अब एक जो 543 पार्ट्स है, हर पार्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, खड़े होंगे इलेक्शन में, वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, लोग उनको वोट देंगे. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, है ना. तो ये जो 543 पार्ट्स में पूरी कंट्री को बांटा गया, इसी को हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी. ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आती है रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी. रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी से हम क्या मीन करते हैं. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का मतलब यही हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, लाइक ये कंस्टिट्यूएंसी जो है, इसको क्या किया गया, इसको रिजर्व कह दिया गया कि दिस इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट. ठीक है, तो अब इस रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, इसका मतलब ये होता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, वो कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, दैट डजंट मैटर. द ओनली थिंग इज दैट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट. ठीक है, चाहे कांग्रेस अपने उम्मीदवार यहाँ पे खड़े करे, चाहे बीजेपी खड़ा करे, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, कोई भी अपने कैंडिडेट यहाँ इस रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट करने के लिए खड़ा करेगा, तो वो कैंडिडेट जो है वो एससी का ही होना चाहिए. और जब पीपल विल एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू एससी और एसटी और ओबीसी और जनरल, एवरीवन विल कास्ट देयर वोट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी. और सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है ना कि जो डिफरेंट हमारे कंट्री के अंदर कम्युनिटीज़ हैं ना, उसके लिए अलग अलग एक पर्टिकुलर जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो जाता है. तो उस कंस्टिट्यूएंसी में जो कंटेस्टेंट होंगे वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग होंगे. जैसे एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया सपोज शेड्यूल कास्ट के लिए, तो अब उस कंस्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो शेड्यूल कास्ट का ही होगा. और दूसरी चीज़, यहाँ तक तो दोनों बराबर हैं, लेकिन दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसमें जो लोग
जो वोटर्स जो होंगे सारे वोटर्स उसमें अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी जो कि एक अगर शेड्यूल कास्ट के लिए वो सेपरेट कर दिया गया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स हैं वही अपने वोटिंग राइट को यूज़ करेंगे। अदर सेक्शंस जो हैं, अदर कम्युनिटीज़ जो हैं, वो उसके जो सिटीजन्स हैं, दे विल नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। सो दिस इज़ कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि ये कहा कि अगर हमें लोगों को SC या ST को रिजर्वेशन देना है या उनको रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू देंगे, न कि सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, जो आपके कास्ट की आइडेंटिटी है, उसको वो एनफोर्स, उस पर वो एम्फेसिस डालता है। तो उससे क्या होगा कि हमारे नेशनल आइडेंटिटी जो है वो हर्ट होगी। ठीक है। और इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बैलेंस बना के चले, है ना। और हमारे जो लीडर्स हैं उनका ये कहना था कि फोर्स यूनिटी नहीं चाहिए। आप किसी को फोर्स करके कहिए कि नहीं आपको साथ में रहना है, तो वैसा जो साथ होगा वो जो यूनिटी होगी वो बहुत दिन नहीं चल पाएगी। इसके लिए आपको ट्रू फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। अब अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। वी मे हैव different religion, different culture, different language, but we all are one as a nation, है ना। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर का यही कहना था कि फोर्स्ड यूनिटी की जगह हमें ट्रू फ्रैटर्निटी को डेवलप करना चाहिए, है ना। और सरदार पटेल ने भी कहा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वन कम्युनिटी को इवॉल्व करना। वी ऑल बिलोंग टू वन कम्युनिटी। So this is all for today, and now we have completed this chapter. मतलब जो philosophy of the constitution का जो part हमें पढ़ना था we have done, and now we will move to another topic of this constitution, why and how, that is this fundamental rights. Okay, so we will do that chapter in the next class.